Hello, good morning class. I am Puneet Sharma and in this video we are going to start our third chapter of class 11th of political science. Your chapter name is beta legislature. In this video we will study about the legislature or parliamentary system in India. Okay, and next one is bicameral legislature of India. Got it beta? And let's start our topic, that is legislature. Before the legislature introduction, I want to give the introduction of your form of government. Okay, as we know that in India democracy is there. Okay, democracy is there and federal system is also in your country. Federal system is beta the division of power. ओके, फेडरल सिस्टम जो फेडरलिज्म फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम, फेडरेशन गवर्नमेंट. इन द फेडरल गवर्नमेंट द मेन इंपॉर्टेंट feature of the federal government, that is the division of power, and in India division of power is also there. Okay, and before the introduction of the legislature I want to tell you the power of division in India. Okay, in horizontally form the government having the three organs. The government having the three organs. बेटा गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हैं? 3. फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी. ओके, द लेजिस्लेचर मेक्स द रूल एंड रेगुलेशन. जो लेजिस्लेचर है वो क्या करती है? मेक्स द रूल एंड रेगुलेशन फॉर द कंट्री. ओके, makes the rule and regulation, makes the rule and regulation for the country. And next one is executive. The executive execute the rules and regulation, which are made by the legislature, Okay beta, and next one is judiciary play an important role in maintain peace in the society. Okay, if any person break the rule and regulation, then the judiciary give punishment to whom? Beta, who break the rules and regulation, okay, which are made by the legislature or which are in the written form of the constitution. Got it beta? जो legislature है आपकी विधान पालिका, legislature beta विधान पालिका, and the second name of your legislature, that is parliament. बेटा यहाँ पे in this video we will study about the सेंट्रल लेजिस्लेचर. ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर है, इट मीन्स पार्लियामेंट है, उसके बारे में हम इस वीडियो में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. ठीक है, और ये आपका जो सेंटर पार्लियामेंट है वो बाइकैमेरल लेजिस्लेचर are present in your India, and legislature makes the rule and regulation for your country. Got it beta? In the center level, the parliament makes the rule and regulation for the country. Okay, clear beta? ये government के जो 3 organs है, clear हो गए. In next chapter we will study about the executive, and next chapter we will study about the judiciary. Okay, in this chapter we will study about only the legislature. Clear हो गया बेटा? The legislature makes the rules and regulation for the कंट्री. जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो क्या करती है? वो बेटा आपके कंट्री के लिए रूल रेगुलेशन क्या करती है? रूल रेगुलेशन बनाती है. ठीक है बेटा? इन इंडिया द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एडॉप्टेड एट द सेंटर बाय एडॉप्टिंग बाइकैमेरल लेजिस्लेचर. As we know that the parliament system is adopted from the Britain.
Okay, and in Indian Parliament, two houses are there. In next topic, we will study about the two houses of Parliament. The legislature help people in holding the representative accountable. In Parliament, there are two House of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. And next topic, we will study about the legislature houses. ठीक है? In India, two houses are there in our parliament. Better write down these topics in your fair notebook. Do fast. Clear this topic to everyone. बेटा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है? इन द डेमोक्रेसी द पर्सन, द पब्लिक ऑफ द कंट्री कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन. ओके, एंड फेडरल सिस्टम में क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, एंड द फेडरल सिस्टम एडोप्टेड फ्रॉम द यूएसए. ठीक है बेटा, एंड इन इंडिया सेमी फेडरल सिस्टम इज देयर. एज I want to tell you, government having the three organs, legislature, executive, judiciary. Legislature क्या करती है? रूल मेक करती है. जुडिशरी उनको एग्जीक्यूट करती, एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी उनको क्या करती है? जो रूल मेक करते हैं उनको, रूल ब्रेक करने वाले पर्सन को पनिशमेंट देती है. क्लियर? योर नेक्स्ट टॉपिक इज टू हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर. Two houses of legislature. In India, bicameral system is there. Bicameral system means मतलब बेटा two house of legislature. Got it? यहाँ पे बेटा two houses कौन से हैं? First one is लोक सभा and second one is राज्य सभा. With the help of differentiation method, we will study about this question. ठीक है बेटा, ये बहुत ज्यादा इजी रहेगा. किसके लिए? आप लोगों के लिए. ठीक है बेटा, द लोअर हाउस, द लोक सभा, सेकेंड नेम इज द लोक सभा, नोन एज द लोअर हाउस. लोअर हाउस. नेक्स्ट वन बेटा, या फिर लोअर हाउस आप इसको बोलोगे. राज्यसभा है बेटा आपका अपर हाउस. द राज्यसभा, अदर नेम इज अपर हाउस या राज्यसभा, नोन एज अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर. गोट इट बेटा. नेक्स्ट वन इज द लोक सभा रिप्रेजेंट द लोक सभा रिप्रेजेंट द पब्लिक. रिप्रेजेंट द पब्लिक. Represent the public. That's why we can say that the Lok Sabha second name is representative of the public. Okay, with the direct election we send our representative in the Lok Sabha. Got it बेटा. लोक सभा किसको रिप्रेजेंट करता है? द लोक सभा रिप्रेजेंट द पब्लिक. Why? Because in Lok Sabha, the public send their representative with the help of election, direct election. ठीक है बेटा. And this one is represent states. Represent state. बेटा ये क्या है? ये आपके states को represent करता है. As you are in India, 28 स्टेट्स आर देयर. तो ये आपका किसको? इस राज्यसभा में स्टेट के भी हाफ में मेंबर इलेक्ट होते हैं, मेंबर सेंड किए जाते हैं. और इसमें जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो किसके? डायरेक्टली किसके थ्रू? आपकी पब्लिक के थ्रू क्या करते हैं? चूज किए जाते हैं. थर्ड वन बेटा, लोअर हाउस रिप्रेजेंट द पब्लिक. थर्ड वन इज डायरेक्ट इलेक्शन. With the help of direct election, we can choose our representative and send them in Lok Sabha.
ठीक है बेटा। डायरेक्ट इलेक्शन से, जैसे आपका क्या है, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके इलेक्शन में आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो वो उनका क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है। थर्ड वन इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन बेटा इनको कैसे हम चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। आर एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्ट दम। इनका जो क्या होता है, इनको कौन इलेक्ट करता है बेटा, आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जो आपके स्टेट लेवल के जो लेजिस्लेचर काउंसिल होती है आपकी, वो क्या करती है, इन लोगों के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज टेन्यूर। टेन्यूर बेटा 5 ईयर होता है इसका, 5 years। आफ्टर द एवरी 5 years द इलेक्शन कमीशन हेल्ड द इलेक्शन, या इनका टेन्यूर है बेटा 5 years। हर एक 5 साल के बाद इनका दोबारा से क्या होता है, इलेक्शन होता है। एंड राज्यसभा टेन्यूर है बेटा 6 years। टेन्यूर 6 years, राज्यसभा का टेन्यूर है बेटा 6 years। ठीक है। एंड द लोकसभा इज ए टेम्परेरी, लोकसभा इज ए टेम्परेरी हाउस। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके लोकसभा में हर एक 5 साल के बाद आपको अपने न्यू एमपी को चूज करना होता है। ठीक है, क्लियर बेटा। और आपका जो राज्यसभा है, राज्यसभा एक क्या है, परमानेंट हाउस है बेटा। राज्यसभा इज योर परमानेंट हाउस। वाई बेटा, इसमें जो विद इन मतलब आफ्टर 5 years ऑल द लोकसभा वी कैन डिजोल्व। इसमें सारी की सारी क्या होती है बेटा, जो आपका सारे के सारे लोकसभा मेंबर 5 year के बाद हम उसको दोबारा चूज कर सकते हैं। और अगर मतलब 5 year के मिड में भी हम उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, डिसोल्व कर सकते हैं हम लोकसभा को। लेकिन जो आपकी राज्यसभा होती है, राज्यसभा आपके बेटा, राज्यसभा में हर एक 6 years में इलेक्शन होते हैं, लेकिन कंप्लीट राज्यसभा के लिए नहीं होते। ठीक है बेटा, कंप्लीट राज्यसभा के इलेक्शन नहीं होते। इनमें 2 years के लिए बेटा आपके हर एक 2 year के बाद 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड फ्रॉम द राज्यसभा। इसीलिए ये मतलब क्या होता है, एक परमानेंट डिसोल्व नहीं होता राज्यसभा। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, परमानेंट हाउस। गोट इट बेटा। नेक्स्ट वन इज इन लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स दैट इज 552। ये है बेटा मैक्सिमम मेंबर्स। ठीक है, बट एट प्रेजेंट हाउ मेनी 545 members are there in your Lok Sabha. Clear to everyone? In Rajya Sabha, the maximum strength that is 250. At present, 243 members are there in Rajya Sabha. क्लियर बेटा, जो 243 मेंबर्स क्या है आपके एट प्रेजेंट है। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर टू एवरीवन। नाउ राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। नोट डाउन बेटा, आई एम गिविंग 30 seconds टू यू फॉर द नोट डाउन। डू फास्ट। डन बेटा, ओके। 6.2
Done. Now, seventh point is the President of India can nominate two members. Two members. Which type of members, beta? Anglo-Indians. Two members can nominate. Okay. The President of India can nominate two members in the Lok Sabha. ठीक है बेटा? Which type of members? Two Anglo and Indians. ठीक है? Out of 445 जो आपकी सीट्स है उनमें से 2 मेंबर कौन होते हैं? इंग्लो इंडियंस होते हैं. वो किसके लिए बेटा? रिजर्व होती हैं ये 2 सीट्स. उनको आपका प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट करता है. क्लियर बेटा? एंड नेक्स्ट वन इज राज्यसभा. इन राज्यसभा 243 members are there at present. Out of 243, 12 members are nominated by the president. कितने मेंबर्स बेटा? 12 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? आपका प्रेसिडेंट करता है. इन लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 552 मेंबर्स. आउट ऑफ 552, 530 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द स्टेट. 530 किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? 530 जो आपके स्टेट्स है 20 ये आपके स्टेट्स है जो उनमें से आपके 530 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं. एंड 20 members to represent the union territories and 2 members to nominated by the president from the Anglo-Indian. Okay beta, at present 545 members are in your Lok Sabha. Clear to everyone till now? बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है? Now one another question in front of us, that difference between nominated and elected. Nominated and elected बेटा मैंने आपको बताया from the 545 2 members are nominated from the president and the rest member are the elected member in Lok Sabha. ठीक है? Then you know about the nominated and elected members. बेटा कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर. इलेक्टेड मेंबर वो होते हैं बेटा जो इलेक्शन में मेजोरिटी गेट करके यहाँ पे आए हैं. ठीक है? जो इलेक्शन की हेल्प से यहाँ पे आए हैं, जैसे हम वोट करते हैं वोटिंग सिस्टम में जिसको मेजोरिटी मिलती है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? इलेक्ट हो जाता है. ठीक है? नॉमिनेटेड क्या होता है बेटा? नॉमिनेट करते टाइम किसी टाइप की कोई इलेक्शन नहीं होते. ऑन द बिहाफ ऑफ देयर गुड एटीट्यूड, ओके, गुड नॉलेज या फिर किसी अदर थिंग्स को देखते हुए जो प्रेसिडेंट होता है वो उनको क्या कर देता है? नॉमिनेट करता है उस पोस्ट पर विदाउट किसी इलेक्शन सिस्टम के. ठीक है? जैसे यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास. ए टीचर बेटा एक टीचर होता है जो आपको एक मॉनिटर बना देता है एक स्टूडेंट को. ठीक है? वो क्योंकि उसको पता है इस स्टूडेंट में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है. ठीक है? तो क्या है, उस टीचर को उस मॉनिटर को कौन अपॉइंट करता है बेटा? कौन अपॉइंट करता है? टीचर अपॉइंट करता है. क्यों? मतलब एक तो आपके उसमें क्या होती है? वोटिंग होती है कि बेटा 2 स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास एंड यू गिव द वोट टू ए पर्सन ए और बी. जिसको भी आपको वोट देना है आप उसको वोट दोगे और जिस स्टूडेंट को क्या मिलेगी? मेजोरिटी मिलेगी. उसको हम क्लास मॉनिटर क्या कर देंगे? इलेक्ट कर देंगे. सेकंड है, अगर टीचर कोई भी टीचर आता है, आपकी प्रिंसिपल को ले लेते हैं, आपकी प्रिंसिपल क्लास में आती है और एक बच्चे को क्या करके खड़ा करके उसको नॉमिनेट कर देती है एज ए योर क्लास मॉनिटर. ठीक है? तो उसके बारे में कोई वोटिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? नॉमिनेट कर दिया. किस बिहाफ पे? क्योंकि प्रिंसिपल के सामने उसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है ना बेटा.
तो ये क्या है डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड में हम उसको उसके एबिलिटी, उसके गट्स या पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है, उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। इलेक्टेड में मतलब कोई पर्सन नॉमिनेट होने के चांसेस नहीं होते। जो पर्सन क्या करता है, मेजोरिटी गेट करता है इन इलेक्शन, हम उसको क्या बना देते हैं, मतलब वो उस पोस्ट पे इलेक्ट हो जाता है। Okay, now in this video also I want to tell you about one more question to you, that why the Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. Got it beta? Why the Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha? बेटा जो आपका लोकसभा है वो राज्यसभा से पावरफुल क्यों है? वाई द लोकसभा इज मोर इम्पोर्टेंट या मोर पावरफुल देन राज्यसभा, पावरफुल देन राज्यसभा। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, लिसन दिस क्वेश्चन केयरफुली। ओके, ये क्वेश्चन क्या है बेटा कि जो लोकसभा है वो आपका राज्यसभा से पावरफुल क्यों है, क्या रीजन है कि ये आपके राज्यसभा से पावरफुल है? बेटा आंसर इज दिस, क्योंकि इससे पहले जब हमने डिफरेंशिएट किया बिटवीन द राज्यसभा एंड लोकसभा, आई टोल्ड यू दैट लोकसभा अदर नेम इज लोअर हाउस and Rajya Sabha is upper house, but in the actually Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. In previous question we already told you about the election method of the both house. The Lok Sabha members are elected by the direct. Lok Sabha members are elected by direct election. डायरेक्ट इलेक्शन में बेटा हम इनको क्या करते हैं, चूज करते हैं। एंड अपर हाउस में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। या यू कैन से सेकेंड थिंग, इन द लोक सभा election we choose the simple method of the voting, yeah you can say FPTP, but in Rajya Sabha we use the PR system. ठीक है बेटा, in Rajya Sabha election members election we use the PR method. Got it बेटा? सेकेंड वन क्या है, जो आपका लोअर हाउस है, इट मीन्स लोकसभा। लोकसभा क्या है बेटा, लोकसभा आपका क्या करता है, पब्लिक, लोकसभा के जो मेंबर है वो कौन होते हैं, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बट इन द राज्यसभा द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट। ठीक है, इसीलिए एंड वी नो दैट इन डेमोक्रेटिक कंट्री, इन डेमोक्रेसी वी गिव द प्रेफरेंस टू आवर पब्लिक। ठीक है, तो क्या होता है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं बेटा वो पब्लिक चूज करती है, इसलिए हम उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मोर इम्पोर्टेंट point of this question, that is the ordinary bill. We can introduce the ordinary bill in both house. ठीक है, जो हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो बिल होता है, सिंपल बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होते हैं, हम किसी भी हाउस में, अपर हाउस या लोअर हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में, किसी में भी फर्स्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो मनी बिल होता है, एक्सेप्ट देन मनी बिल, जो मनी बिल होता है बेटा, फाइनेंशियल बिल होता है, वो किसी सिर्फ किसमें, फर्स्टली किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो बेटा आपका सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा, द राज्यसभा नॉट हैविंग द एनी टाइप ऑफ पावर इन द मनी बिल। ठीक है,
कोई पावर नहीं होती बेटा अपर हाउस के पास, राज्यसभा के पास। जो मनी बिल यहाँ से पास हो जाता है 2/3 मेजोरिटी से, और कहाँ पे अपर हाउस में या राज्यसभा में सेंड करते हैं, तो 14 डेज तक ही राज्यसभा उसको अपने पास रख सकती है बेटा। विद इन 14 डेज द राज्यसभा हैव टू गिव द आंसर। उसको इस बिल से रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर देने के बाद मतलब उसमें वो मेन चेंजेस नहीं कर सकती, सिर्फ जो मतलब छोटे मोटे चेंज कर सकती है, ठीक है। अगर वो 14 डेज में कुछ उसमें एक्शन नहीं करती, चेंजेस नहीं करती, तो आफ्टर 14 डेज वो अपने आप राज्यसभा से क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा, ठीक है बेटा। The Lok Sabha exercise more powers in money matters. Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it. अगर कोई भी मनी से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है, लॉ होता है, अगर आपका लोकसभा उसको पास कर देता है, तो राज्यसभा नॉट हैविंग द राइट टू रिजेक्ट इट। तो आपकी जो लोकसभा के पास करने के बाद उस बिल को रिजेक्ट करने की पावर आपकी किसके पास नहीं है, राज्यसभा के पास, ठीक है। दैट्स व्हाई वी सेज दैट इन इंडियन पार्लियामेंट द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? इफ एनी प्रॉब्लम टू एनीवन till now in this chapter, then you can ask me, you can comment beta, okay?